ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਚਿਤਵੋਂ ਤੁਮਰੀ ਓਰ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ, ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੈ ਪਾਉ ਜਿਉ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ, ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾਂ ਪਾਉ ਜਿਉ। ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇਹ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ। ਸੋਈ ਦਸ ਉਪਦੇਸੜਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਨੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ਜਿਉ। ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚਲ ਕੈ, ਮੈਂ ਟੱਕੀ ਤਾਉ ਸ਼ਰਨ ਆਇ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁਖ ਗਵਾਏ ਜਿਉ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ 9ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਜਿਨ ਸੱਚੋਂ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਔਰ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਣ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰੋਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਵਤਦਿਗਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਬੰਦਗੀ, ਇਬਾਦਤ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਿਮਰਨ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤਲਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹੀ ਵਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 4 ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 4 ਲੋਕ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਾਇੰਸ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆਂ ਹੈ ਸਾਥ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਦ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਤਨ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੱਦ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆਂ ਹੈ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਸੱਥਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਗੱਡੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇੜੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੇੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਨਾ ਕਾਗਜ਼, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਲੈ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਲੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ
ਸਿਲੇਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਊਰੀਕੁਲਮ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੈਸਟਰ ਹੈ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਰਸ ਮੇਜਰ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਥਿਕਸ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਚਾਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਲॉकडाउन ने बड़ा कुछ बदल के रखता है। 6-6 5-5 साल के बच्चों के हाथ 'ਚ मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, सारा दिन बच्चे पढ़ रहे हैं। पर पढ़न का तो एक छोटा जिहा हिस्सा है, पर उस इंटरनेट से असी कितना कुछ वास्ट बच्चों को खोल के देता जिहड़ा बड़ा खतरनाक है। उत्तों टीवी ते एडां आ रही, कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेच रही है कि 7 साल का बच्चा एप्लीकेशन बना सकता मोबाइल फोन की, ये ऐप बना रहा है। 7-9 साल का बच्चा कोडिंग कर रहा है, कोडिंग सीख रहा है। भाई अपने मत नूं हथ मार के पुछो कि 7-9 साल के बच्चे कोडिंग बनाने वास्ते बने ने? साडे दरवाज़ियां दे बाहर भीड़ लगी हुई है खरीदण वालियां दी, दिओ 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 असीं खरीददे हां तुहाडी एप्लीकेशन जिहड़ा तुहाडा बच्चा बना रहा। 7 ते 9 साल, 7 साल 9 साल इन्हां बच्चियां दी उम्र कोडिंग वास्ते नहीं है, ये मोबाइल फोन ते कंप्यूटर की। ये उम्र इहो होंदी है कि बच्चा जद अपने नाल अपने परिवार दे विच जीवन दे मसलियां दी कोडिंग नूं खोलना सीखे कि माँ पे ये सिखाण के भाई कि प्यार नाल किवें जीना है, वड्डियां दा सत्कार किवें करना है, जे कोई चीज़ मिले तो उन्होंने वंड के किवें वरतना है, कि झूठ नहीं बोलना, सच का जीवन किवें बतीत करना है, अपनी बॉडी अपनी लाइफ का डिसिपलिन किवें। कोडिंग तो बॉडी बाहर दी है, ये इस कोड नूं डिकोड करिए, पर असीं किहड़े पासे लग गए हाँ। 7 साल के बच्चे की ऐप कमाल होगी, कितना असर पेगा बच्चे के दिमाग से। तो बच्चा खेडण वास्ते है, बाहर घूमण वास्ते है, उन्होंने कुदरत दिखाओ, अपने उम्र के बच्चों के नाल गलबात करन वास्ते है। ये उहदे दिमाग का, उहदे शरीर का विकास का समा है। असीं वो रोक रहे हाँ, असीं रोक रहे हाँ। यही महाराज जी कहते कि इनू भी देखो, सतगुरु जी ने तो 300-350 साल पहला कहता, तो अज यही अज सब तो ज़्यादा जिहड़ा पैसा कमाया जा रहा है वो इसी फील्ड तो कमाया जा रहा है, एडुकेशन की फील्ड तो। किन्ने यूनीवर्सिटीज़, किन्ने इंस्टीट्यूशन, और सब तो वड्डा जिहड़ा अज दा परेशानी दा मसला है ना माँ पे दा, कि बच्चों नूं पढ़ाउणा किवें है, बड़ी चिंता है। इन्ना पैसा चाहिए बच्चों नूं पढ़ाउण वास्ते, पर महाराज कहते जो असीं पढ़ा रहे हाँ, 4 पैसे तो कमा लेगा, जीवन तो कमा लेगा, कल नूं उसी पढ़ाई करके उन्हां पैसिਆਂ करके ये सारा कुछ पसारा करके जे सानू ही चक के बाहर मारे कि जाओ हुण तुसीं बिरध आश्रम, मैनूं तुहाडी लोड़ नहीं है, फिर की कर लोगे पढ़ाइयां तां? जे चक के कहे चलो जाओ हुण होगी, सानू साडी जीवन दिओ, तुसीं अपनी जाके हुण बिरध आश्रम। महाराज कहते ये तो की है, ये कादी जिंदगी, कादी पढ़ाई है जिहदे विच असीं इतफाक नहीं सिखा सके, ये नहीं सिखा सके कि जननी जन्म देने वाली एक रब तो घट नहीं है। बाहर आके गुरु घर आके रब नूं पूजना एक कदी भी प्रवान नहीं है जे घर दे विच माता पिता का सत्कार नहीं किया जा रहा, वड्डियां दे नाल इतफाक नहीं रखा जा रहा, फिर ये बंदगी महाराज कहते प्रवान नहीं है। जीवत पितर ना मानै को, जिउंदियां जी ते सत्कार किया नहीं, फिर जो मर्जी कराइए असीं नहीं। जे जिउंदे जी सेवा की तो बड़ा बड़ा कुछ सरमाया मिलता है। कली माता पिता की जमीनी जायदाद ते दौलत बच्चियां कोल नहीं आउंदी,
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦਫੈਲੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਰਦਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਹਰ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਖਾਤ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦ ਲੇ, ਮਣਾਂ ਦੇ ਮਣ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਰੱਟੇ ਹੋਣ, ਰਾਈਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਬਰਸ ਦੇ ਬਰਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਆਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਗੱਡੇ ਦੇ ਗੱਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਾਂ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੋੜਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋੜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਾ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਫਿਰ ਕੌੜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਲਵਕੜੀ ਲਾ ਲੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਾਂ ਸਾਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਏ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜਿਉ, ਆਖਾਂ ਬਿਰਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ, ਸੋਈ ਦਸ ਉਪਦੇਸੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਏ ਜਿਉ, ਇਹ ਮਨ ਤੈਕੂ ਢੇਵਸਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਤਾਈ ਜਿਉ,
हाँ आया दूरों चल के, जपो जी, हाँ आया दूरों चल के। नहीं जी, इत्थे ही घर है साडा, बहुता दूर नहीं है। महाराज कहते ये दूरी नहीं, कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। दुखां की दूरी बहुत है साडी, मन की चिंता संताप की दूरी बहुत है साडी। किवें दूरी है? दूरी का मतलब है जब चिंता होए ना, एक एक घड़ी लंघाउणी औखी हो जाती है, समा नहीं लंघदा। खुशी होए समय का पता नहीं लगता। दुखां ते संताप का सफ़र बहुत है। हाँ आया दूरों चल के, मैं बहुत भटक भटक के आया, फिरत फिरत प्रभ आया, जपो जी, फिरत फिरत प्रभ आया, मैं तुहाडी शरणी आया। परिया तौ शरणाए, जपो परिया तौ शरणाए। अगली सारी तुक रज के बोलो, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। नानक की प्रभ बेनती, गुरु नानक साहब कहते इत्थे आके बेनती करो। असी भी बेनती की प्रभु अगे कि तुसी अपनी भगती लाओ। ये भगती ये नहीं कि बस हुण भगवे कपड़े चिट्टे पा ले ते किसी नूं बुलाया नहीं ते बिल्कुल साध मुरादे जे हो गए, बस भोरा जा पट लिया बह गए। भगती का मतलब है कि गुण दिओ, अपने अपने वर्गा बनाओ, अपनी जीवन जाच दिओ। इस भगती दे विच तुसीं लाओ, जिसनूं असीं कहंदे आ ना कि बड्डा बच्चे नूं उंगल ला के चलदा है कि तू उन्होंने उंगल ला के लै गया, भाव उन्होंने नाल लै गया। इस तरह अपनी भगती लाए, तुसी मैनू भगती लाओ, तुसी मैनू अपने गुणा दे वस करो, तुसी मैनू अपने गुणा का प्रभाव दिओ। इनू साहिब जी कहते यह मन तैकू डेवसां, मैं मन दे के राजी हाँ, क्योंकि पहला राजी नहीं सी। मैं ए मेरा ज्ञान मेरा ध्यान, पर महाराज कहते नानक लिखा एक गल देना ही पएगा। जेड़ी हौमै दियां पढ़ना सारी उम्र भी पढ़ के, सारी उम्र भी ज्ञान इकट्ठा करके इत्थे भर ली है ना, महाराज कहते ये फिर भी रखनी पेगी, ये फिर भी देनी पेगी उन्होंने, क्योंकि इत्थे आउण की मर्यादा है। जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। आ देनी पेगी मत, सिर का मतलब आ मत, आ सियाणप त्यागनी पेगी, क्योंकि इत्थे दुनिया की सियाणप तो चल सकती है, इत्थे नानक लेखा एक गल सच की सियाणप नहीं चल सकती, अणदिसदे पसारे की सियाणप नहीं चल सकती। गुरु तो सियाणा कोई नहीं हो सकता। जे कोई हो जाए कि मैं हो गया, जे कोई कहे कि गुरु साहब ये गलती करते सी, ये गलती कर रहे सन, जुबान सड़ जाती है साड़ी जे ये असी लफ्ज़ भी बोलीए, पर कहने वाले बहुत ने। आज सोशल मीडिया च कैसे कैसे नवे राइटर खड़े हो गए, उठ पे है कवि 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 बंद लिखने वाले, जिहड़े गुरु नानक साहब नूं पता नहीं की कुछ कही जाते, गुरु साहब बारे की लफ्ज़ वरते जाते हैं। पर महाराज कहते होर कुछ नहीं, नानक लिखा एक गल होर, हौमै झखना झाख। बस ये हौमै दी झग है, हौमै दी मैल है, ये हौमै दी मलीनता है, तो हौमै दा भार है। ये कुछ भी नहीं, इन्हें जीवन नहीं सवारना। अगे साहिब जी कहते महला पहला, जीवन क्यों नहीं सवारना? फिर जिन्ना बंदा पढ़ जाता है उन्ना सियाणा नहीं होया, उन्ना उहदे कोल ज्ञान नहीं होया। महाराज कहते ज्ञान तो एक पासे है, पर उस ज्ञान की जिहड़ी हौमै होंदी है वो सब नहीं संभाल सकते। जिन्ना बंदा पढ़ जाता उन्नी उहदी धौण अकड़ जाती है। तू कौन होंदा है फिर, वो कौन होंदा है फिर? पर महाराज जी तो इत्थे आके सारी आकड़ ही कढ़दे हैं कि इत्थे पढ़िया अनपढ़िया परमगत पाहे। इत्थे पढ़न की ते अनपढ़न की तो गल ही नहीं है। इत्थे दे गुरु दरबार दे विच जां सिख मर्यादावां या राह रीत इतिहास दे विच जिहड़ा अल्फ अखर भी नहीं पढ़िया होया सी, घोड़े दियां लिद्दां चकण वाला भी नवाब कपूर सिंह बनदा। इत्थे पढ़िया अनपढ़िया परमगत पाहे, जिन्हों हांका तुमका कह के मखौल करते सन, जिन्हों कुछ नहीं, उन्होंने सिरदारियां बख्शियां सिखां ने, पंथ ने सिरदारियां बख्शियां, क्योंकि वो अंदर हौमै नहीं है।
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਪੇਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜਪੋ ਜੀ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ ਜਪੋ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ। ਹਮ ਐਸੇ ਕਿਵੇਂ? ਹਮ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਹਮ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਸੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਹੋ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ। ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਏ ਵੀ ਸੋਹਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਗਿਆ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਰ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਨਾ, ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਵਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਆਕੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਝੁਕ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦਾਸ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਚਾਰਿਆ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਬੋਧੀ ਬਣਿਆ, ਜਾਪਾਨ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਚਾਰਿਆ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 4-5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਆਚਾਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਰਨਾ, ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਪਿਰਿਟ ਬੌਰਨ ਪੀਪਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸਪਿਰਿਟ ਬੌਰਨ ਪੀਪਲ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਵਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਆਈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਿਓਪਾਰੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ 40-50 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਆ ਸਿਖਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਕਿਆ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੜੇ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਸੀ,
गुरु गोबिंद सिंह साहब तो सियाणा कौन सी? जे कलम चकते ने तो 16,000 वारी तू ही कह जाते। जे कलम चकते ने तो इस धरती के उत्ते ईरान च फारसी, ईरान दे विच फारसी चलती है तो ईरान के विद्वान सब तो सियाणे मन्ने जाते। तो उहदे विच एक विद्वान है जिहदे एक फारसी के शेर ते उस वेले का बादशाह सोने की मोहर दिंदा सी। उहदा नाम सी फरदौस। फरदौस कहते फारसी का सब तो वड्डा, सब तो तगड़ा मीटर जिहदा शायरी का होया फरदौस का। पर जब गुरु नानक साहब जी की जोत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जफरनामा लिखिया, जफरनामे का एक शेर फरदौस के 60,000 शेर ने वो फारसी के, फरदौस के 60,000 शेर नूं फिक्का पा गया, फिक्के पै गए शेर। कौन होंदे असीं? गुरु ग्रंथ साहब जी नूं असीं ऐं समझी बैठे हाँ बई मैनू खिमा बख्शिओ, बच्चों नूं अज मत्था टेकना भी नहीं आया, सानू अज गुरु का सत्कार भी नहीं करना आया। सत्कार कल्ला आके सिर झुकाना नहीं होंदा, सत्कार हुंदा गल करिए वड्डियां नाल, गुरु की गल पुछिए, करनी अपनी है तो फिर वड्डियां दा काहदा सत्कार होएगा? समझो गल नूं। गल दे विच वड्डे घर च वड्डे बैठे है, घर कहिंदे कि भाई इवें करो, बच्चा जाके जो मर्जी करे, फिर वो थोड़ी सत्कार होया गुरु का। महाराज कहते महला पहला लिख लिख पढ़िया, जिन्हें लिखिया जिन्हें पढ़िया, जिन्हें बहुत पढ़िया तेता कड़िया। कड़िया का मतलब उन्हां हौमै दे विच सड़ गया, हौमै ने उन्होंने काड़ दिता, हौमै दे नाल ऐन रंगीचिया गया। बहु तीरथ भव्या, फिर बहुत थावां ते गया लोगों नूं दस्सण लई, भाई मैं भी हुंदा। कई लोग उही जाते हैं तो कई लोग तीर्थां का मान करते हैं। ते तो लविया, कहते उथे जा जा के भी लोगों नूं जाके आके दसे कि मैं तीर्थां ते जाना, मैं उधर गया, मैं उधर गया। लविया लफ्ज़ है काऊं, जिमें कां काऊं काऊं करदा है ना, लाऊं लाऊं, ये लाऊं लाऊं तो लफ्ज़ महाराज जी ने लविया रहा। कहते बंदा तीरथ गया तो तीरथ तो आके घड़ी चुप बंदा होए कि भाई वारिस शाह वे जग तो छुपाए जी, भावें अपना ही गुड़ क्यों ना खाइए जी। सियाणप तो यह है कि जे तू चंगा काम करके आया तो उन्होंने मान तो सही। कहते मानना तो एक पासे रहा, तीरथ भव्या, कहते बहु तीरथ भव्या ते तो लविया, लव लव करदा, कहते तीरथ का सारा फल मिट्टी पलीत कर लिया। बहु भेख किया देही दुख दिया। हुण सतगुरु जी ने कला पढ़न लिखण की गल नहीं की, कहते पढ़न तो अलहदा भी बड़ी हौमै है। पहले सलोक दे विच ये कहता कि भाई जे कुछ पढ़िया अपने इष्ट अपने गुरु नूं नमस्कार करके पढ़ो। बड़ी कमाल की गल दसां, भावें कि ये वो गुरमत का शायर तो नहीं है, नशा भी करता रहा सारी उम्र। शिव कुमार बटालवी सिख नहीं, पर उन्हें देखो वो कमाल की गल है। शिव कुमार बटालवी लिखता है कि जब मैं कविता लिखता सी ते बहुत कविता मेरी सिरजदी सी। कहते जिस वेले कई दिन मैनू कोई कविता सिरजदी नहीं सी ना, कागज़ खाली पे होंदे सी, कलम चकदा नहीं सी, कई कई दिन लिखत नहीं आउंदी सी। कहते मैं फिर डर जांदा सी कि हाय शायद मेरी सिरजना ना खत्म हो गई होए, अंदर दी मेरे अंदर दी क्रिएशन ना खत्म हो गई। कहते मैं डर जांदा सी फिर कि शायद हुण शिव कुमार शायद ना लिखे, कोई लफ्ज़ रुस गए ने, लफ्ज़ नाराज़ हो गए ने, मैं किवें मनावां, हुण आउंदे नहीं, हुण बढ़दे नहीं लफ्ज़। कहते फिर शिव कुमार कहता मैं कागज़ के सब तो उत्ते एका ते ओंकार, एक ओंकार पा दिंदा सी। कहते फिर मैं बेफिक्र हो जाता सी। कहते एक ओंकार जिथे पै गया, कहते उहदी सिरजना कदी खत्म नहीं होनी, वो सदा ही सिरजण वाला है प्रभु। कहता फिर मैं खाली कागज़ ते एक ओंकार पा दिंदा सी। कहता फिर मैनू मेरा डर खत्म हो जाता सी, ये सिरजना कदी खत्म नहीं हो सकती। एक ओंकार, कार का मतलब है कॉन्सटेंट मूविंग, कॉन्सटेंट चेंजिंग, कॉन्सटेंट एनर्जी, जिहड़ी सदा ही है, जिन्हों कोई रोक नहीं सकता। यही बलवंत गार्गी है, देखो वो भी सिख नहीं, पंजाबी लिटरेचर के महारथी, अज पढ़न वालियां की गल कर रहे हैं। बलवंत गार्गी कहता मेरा जन्म होया, मेरा वड्डा भरा ते मैनू मेरी माँ पिंड के बाहर एक साध बहिंदा सी, उहदे कोल लै गई।
मेरी माँ कहती कि मेरे को इन्नी समर्था नहीं मैं दोनों पुत्रां नूं पढ़ा सकां, ते बाबा जी तुसीं दसो किहड़ा पुत्र पढ़ेगा। कहंदे वो भी बड़ा अत्थड़ जिहा साज सी, कहंदे ना उन्हें अखां खोलियां ना मूँह चक्किया, कहंदे मुंडी थल्ले सुट्टी मेरे उत्ते हत्थ करता। कहंदे जे वो हत्थ मेरे भरा उत्ते कर दिंदा तो शायद मैं अज आड़ती हुंदा नाल दी मंडी च। क्यों? कहंदे मेरा भरा अज आड़ती है उत्थे मंडी च। कहंदे फिर मैं पढ़न लिखण लग गया, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮੇ ਪਾਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਖਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਆਉਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, मैं देखना बच्चे उत्थे आउंदे, रोज़ आउंदे। कई दिन लंघ गए, कहंदे कुछ नहीं पढ़िया। पर कहंदे कई दिनों बाद दूरों घोड़े ते सवार होया, नीले बाणे विच उच्चा दुमाला, हत्थ विच बरछा फड़ के कोई आउंदा है। ते नाल दे मेरे साथी कहंदे साडे उस्ताद जी आ गए, साडे टीचर आ गए, ग्रंथी सिंह आ गए। कहंदे सारे सीधे खड़ गए। कहंदे घोड़ा साडे अगे आके रुकिया उन्हां दा। कहंदे मेरे वाल वेख्या, कहंदे तू नवां है, खेडण आया? बलवंत गार्गी कहंदा नहीं जी मैं पढ़न आया। तो कहंदे उन्होंने इशारा किया, बाकी बच्चे पिछे हो गए तो मैं अगे ही रह गया। कहंदे फिर दस की पढ़िया? कहंदे जी मैं अज आया, तुसीं अज सबक दिओ, कल नूं मैं पकावांगा, परसों मैं दस दांगा की पढ़िया। कहंदे फिर अगे आ। कहंदे उन्होंने बरछा बरछे की नोक तो कहंदे धरती दे हिक ते मिट्टी दे उत्ते एका पाया ते एक ओंकार पाया। कहंदे इनू मत्था टेक, कहंदा सब तो पहला सबक तेरा यही है। कहंदे इनू पका लै। बलवंत गार्गी कहंदा मेरा वो ग्रंथी गुरुद्वारे दा उस्ताद कहंदा एका पाया ते ओंकार धरती ते पाया, कहंदा सिर झुका, तेरा पहला सबक यह है। बलवंत गार्गी कहंदा मेरा पहला नहीं, कहंदा मेरा पहला भी वो सी ते मेरी जिंदगी दा आखिरी अर्थ, आखिरी विद्या ते आखिरी सबक भी एक ओंकार ही है। कहंदे इस तो अगे कुछ नहीं, हजे सिख नहीं, पर उहदे अंदर दी भावना देखो। कहंदे अज भी बलवंत गार्गी कहंदा मैं अज भी उडीकदा, वो उहदी लिखतां कहंदियां, लिखतां बोलदियां उहदियां। कहंदे मैं अज भी उडीकदा कोई घोड़े ते सवार होके नीले बाणे च उच्चा दुमाला हाथ च बरछा फड़ के आएगा ते धरती दी हिक उत्ते एक ओंकार पाएगा ते सारी दुनिया उन्होंने अपना सबक समझ के सिर झुकाएगी। यह है पढ़न की भावना जिहड़ी साडे पंजाबियां दे विच है। कि पढ़ के भी सिर झुकाता ते अज असीं 4 किताबां पढ़ लियां, डिग्रियां पढ़ लियां ते सानूं उहदा ही माण नहीं हुंदा, उहदे विच ही आफरी फिरदे हां। ते महाराज कहंदे उन्ना ही कड़िया होया बंदा, उन्ना ही दर्जे का नीवा बंदा महाराज जी कहंदे जिन्हों कड़िया होया, जिहड़ा किसी का कुछ नहीं सवारेगा। अज हो रहा है जे अज दे समय इन द कंटेंपरेरी टाइम्स इफ वी वांट टू सी कि कड़िया की है, अज किडनियां वेचियां जा रही ने, एक कड़िया ही है। करोना के दौर दे विच तौबा तौबा कर दी, डॉक्टरां ने पढ़े ही हुए ने, डिग्रियां की वरतों। अज झूठ सच के नाम से वकील किन्ना क लुट्टी जा रहे हैं, कड़िया ही है। समाज कित्थे रह गया? आटे की कीमत किन्नी क वधी होएगी? 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 20 सालों से वध तो वध 50 रुपए वध गई होएगी, पर तनख्वाहां देखो किन्नियां वध गईयां, लखां। तुसीं इस चीज़ नूं, इस इंबैलेंस नूं ध्यान नाल देखो। ये बड़ा तगड़ा इंबैलेंस है साडे जीवन का कि इन्नियां सैलरियां वध गईयां पर साडी फिर वो पैसा, महाराज जी कहंदे फिर याद रखियो अंग्रेजी का एक बड़ा सोहना अखर है कि इनफ मनी इज इनफ टू बाय प्रॉब्लम्स। कहंदे बहुती मनी बहुत होंदी है तकलीफां खरीदण वास्ते। अज बहुता पैसा असी तकलीफां खरीद रहे हैं। सच्ची गल ये है, मनी इज इनफ, टू मच मनी इज इनफ टू बाय प्रॉब्लम्स। अज सच्ची मुच्ची असी जे बहुत है ना, असी सुख नहीं लैके आ रहे, असी तकलीफां ही लै रहे हैं अपने चौगिरदे दे विच। महाराज जी कहंदे ये कड़िया है जिहदे विच सियाणप नहीं रह गई, बौंदल गया बंदा कि हाय पता नहीं, पर उन्होंने ये नहीं पता
कि अंतम तो इत्थे ही आना पेगा, सिर तो इत्थे ही झुकाना पेगा। तो भावें वो तीरथ जाए तो बहु आके लाओ लाओ करे, महाराज कहते वो भी सियाणप नहीं है। बहु भेख किया देही दुख दिया, भेख करी जाओ देही दुख देई जाओ। महाराज कहते उस रब का की बिगड़ना, उन्होंने की फर्क पैना, उन्होंने तो दुख नाल कोई प्रमाण नहीं है। नानक लिखा एक गल बस, उन्होंने उहदे नाल मतलब है। अगे साहिब जी कहते शाह वे जिया अपना किया, कहते उस शौह का की है, तू जो तू कर रहा तू वह आप ही कमाएगा, अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। ये भी साहिब जी कहते जां जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत, एक कर्मा संदड़ा खेत है। हूँ उन्होंने की कसूर देना, तू शौह है जिया, तू जो कीता तू वो कर अपना, तू जो कीता अपना किया। अन्न ना खाया, कोई कहता मैं जी भुखा रहना, फिर रब का की कसूर। एक गल तो खत्म हो गई ना, हुण अन्न ना खाण का अहंकार हो गया जी। अज 7 दिन असी वर्त, जे 40 दिन के वर्त रोजे चलते हैं, पर उहदे विच कोई भले की गल होए। महाराज कहते जे वर्त रखना है तग ना इंद्री तग ना नारी, भलके थुक पवै नित दाड़ी पढ़ांगे कि भाई इंद्रियां का तो वर्त रखिया नहीं, जुबान का तो कभी वर्त रखिया नहीं, ढिड का वर्त रख लिया, जुबान लाओ लाओ बोली जा रही है, ऐ चरल चरल करी जा रही है, कैंची की तरह ऐ बढ़ी जा रही है, रिश्तियां ते दुनिया के लोगों को दिखाई जा रही है। अजकल खंजर की लोड़ नहीं, अजकल लफ्ज ही खंजर ने। अज के समय च बर्फ के छू जाने से भी जल जाते हैं हाथ, कभी कभी लफ्ज भी खंजर लगते हैं, आही खंजर। महाराज कहते इहदा ते वर्त रखिया नहीं, फिर अन्न ना खाया साध गवाया, बहुत दुख पाया दूजा पाया। कहते दूजे पासे पै गया, होमे वाले पासे। किहड़े पासे पै गया भाई? अन्न बनाया अन्न खाओ, जिन्ना तुहानूं लोड़ है खाओ, तुसीं देही नूं क्यों तकलीफ करदे हो? भगत जी तो इत्थों तक करते हैं, भुख है भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै। मैथों नहीं होंदी भुखी भगत। ते गुरु घर की भी यह मर्यादा है, दरबार साहब पहला पंगत ते फिर पाछे संगत का। यह संकल्प है गुरु अर्जन साहब जी का, गुरु रामदास जी का। गुरु घर का संकल्प है, बलवंड खीमी नेक जन तिन बहुती छा पतराली, लंगर दौलत वंडिया रस अमृत खीर घियाली। देसी घ्यो दियां खीरां भी हैगियां गुरु घर दियां। इत्थे बहुत दुख दिया नहीं है पिंडे नूं। अन्न ना खाया साध गवाया, बहुत दुख पाया दूजा पाया, बस ना पहरै जैनियां की तरह कपड़े नहीं पाने। अहनिस कहर रात दिन सड़ते रहना, ठंड दे विच भी मौसम दे विच भी। मौन विगूता क्यों जागै गुरबिन सूता, मौन रख लिया चुप हो गया। महाराज कहते अंदरों ते विगूता का मतलब की है जी? अंदरों ते ठगया गया, अंदरों ते खाली पिया, अंदर ते मेले लगे हुए चरल चरल दे, लाला लाला हो रही है, जुबान ही बस चुप है। किन्ने चुप रह जाएगी? इवें ही 10 साल मौन धारण वाला जोगी गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार च आया, नाल उन्हें चेले चपाटे रखे, कहते वाह 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 बहुत बड़ा साध है जी, 10 साल हो गए बोलिया नहीं। बहजा हो गई सारे आनंदपुर साहब के विच, केसगढ़ साहब च कमाल हो गई, इन्ने लंबे समय का मौन। महाराज के दरबार च पहुंचा, महाराज के अगे ये रखी गई जी 10 सालों का इन्हें मौन रखा जी। बहुत बहुत डूंगा इहदा सबर है, बोलता नहीं। हाँ किवें गल फिर किवें करते? महाराज कहते कहते कागज़ कलम दिओ, लिख के दस देंदा। महाराज जी समझ गए गल। फिर महाराज जी ने कहा नाल दे सिंगां नूं, ये बहुत पहुंचे हुए साध ने, बड़े साध ने, इन्हों होले ना जानो, जाओ इन्हों की बहुत सेवा करो। तो नाल इशारा भी करता, फिर इन्हों अज खीर पूड़े खिलाओ, इन्हों अज बहुत बेशकीमती सवेरे लैके आना दरबार च, ते मेवे खिला के लैके आना इन्हों, जिन्ना कुछ है सोहना। कहते जी 7 बचन लै गए घर। महाराज ने तो क्या खीर पूड़े खिलाओ, सरफे का फुलका देता लूण पा के, लै बाबा खा लै ते सौ जा। वो कोल हुण कित्थों लंघे? गुरु ने हुक्म किया खीर पूड़े खिलाने हैं, तो ये की खिलाई जाते हैं? कित्थे खाना सी उन्हें? बड़ा औखा होया सारी रात। अगले दिन फिर दरबार च आ गया, बोलना तो की सी, मौन है। सवेरे क्या सी, मेवे खिला के लियाओ, तत्ता पानी पिला के लियाए जी, जिहदे घर रुके सी। हद हो गई।
दूसरा दिन लंघिया, महाराज कहते इन्हां दी सेवा लै ली है, हुण किसी होर परिवार दे तुहानूं भेजने आ, अज उत्थे जाके उन्हां नूं कहता तुसीं सेवा। बाबा भी चलो थोड़ा जिहा तरवास होया, वो तो अकिरत घन सन, गुरु का हुक्म नहीं मन्निया। चलो हुण लखिया मौन है, यब तो उन्होंने पिया होया, दसे की यब तो अपनी गल च पाया, रखिया मौन वर्त उन्हें। उत्थे लै गए दूसरे घर च, महाराज कहते इन्हों छोले बनाओ, सब्जी वधिया एन, नाल इन्हों पूड़ियां छकाओ। ये बहुत पहुंचे हुए साध ने। अगलिया ने पुछया ही नहीं प्रशादा। अगलिया ने कहा बाबा असी तो बस आ दाल फुलका जाए, जे खाना तो खा ला, ठीक है। हैरान हो गया। गुरु साहब ने कहा कि वधिया खिलाओ, पूड़ियां खिलाओ, मिठा खिलाओ, मिष्टांग खिलाओ, हर तरह का पदार्थ 36 पदार्थ खिलाओ। करी की जाते हैं, गुरु की गल ही नहीं मनते। उत्थे जाके तो बड़े सिर झुकाउंदे है, बड़े सोहले गांदे, गुरु की तो है ही नहीं ना च सिक्खी। 3 दिन लंघे, चौथे दिन लाल सुरख मूँह होया, गुरु के दरबार च पहुंचा, कन लाल होए होए, भखिया पिया अंदरों। महाराज कहते साध जी की होया, की होया? वो कहता की होया नूं छड्डो, 10 सालों का जिन्हें मौन रखिया। कहते तुहाडे सिख नहीं हैगे जे, कहते महा धोखा देंदे, कहते तुसीं खीर पूड़े तो मैनूं सरफे का फुलका खिलाउंदे, कहते तुसीं पूड़ियां छोले खिलाओ तो कहते मैनूं ये फुलका नहीं खिलाउंदे चज दा, कहते घ्यो नहीं खिलाया। सारा दरबार हासा ठट्ठा हो गया। एक ही हो गया, 10 साल का बड़ा तप सी। महाराज ने 3 दिनों के विच 10 साल के मौन की भुब्बां कढातियां। महाराज कहते साध जी बस यही समझाउणा सी, असी सिखां नूं कह के भेजिया सी, तुहानूं सुणाउण वास्ते खीर पूड़े सन, बस तुहाडा सबर परखना सी कि ये मौन अंदरों है कि सिर्फ बाहरों ही है। ते गुरु भी ये सबर परखदा सिखां दा। असी इत्थे बहुता प्रपंच करके ना आईए, बहुता दिखावा करके ना आईए। असी ये हुंदे आ गुरु परखण ते आए तो फिर भुब्बां कढा भी देंदे। फिर गुरु हरकृष्ण साहब नाल यही होया दिल्ली दी दरबार च। राणी ने शक किया ना, दासियां दे कपड़े पा के बह गई। महाराज कहंदे गुरु ते परीक्षा पाई जाए तो गुरु निकल जाता है, जे गुरु सिख ते पा दे तो फिर कौन कढेगा? जोगी जी ये मौन नहीं है, अंदर ते तपे फिरदे हो, कित्थे गया 10 सालों का मौन? भाई सबर भी कोई चीज़ होंदी है। मौन का मतलब है सबर, मौन का मतलब है इंद्रियां ते काबू, मौन का मतलब है जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख देता इत ही राजा, जे कुछ भी खाण नूं ना मिले तां भी उहदा शुक्र करो, ये मौन है। ये थोड़ी कि जिहड़ा हो गया वही मिले। इस करके महाराज जी कहंदे मौन विगुता ठगया गया क्यों जाग गए, गुरबिन सूता किवें जाग जाएगा। पग ओपे ताना अपना किया कमाना, पग ओपे ताना कहते पग कहते पैरों नूं, ओपे ताना पैरों तो नंगा बंदा तुरया होया सारी उम्र, पैर फट्टणगे, पैरों ते जख्म होणगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रब नूं की मना रहा तू पैरों का जख्म दिखा के, पैरों का जख्म दिखा के किहड़ी बंदगी किहड़ी इबादत लै लेंगा तू रब तो? महाराज कहते ये कोई इबादत नहीं है गुरु घर की। पगो पे ताना अपना किया कमाना, जिमें तू नंगे पैर तुरिया है, जो तू कीता हुण आप ही भुगत। अलमल खाई सिर शाही पाई, जिन्हों ने मलीनता खाधी है तो सिर दे विच शाही पाई है, सिर दे विच मलीनता पाई है। जैनी लोग करते हैं, बाणी दे विच भी जिक्र है, मूर्ख अंधा पत गवाई। मूर्ख बन के, अन्ना बन के, अज्ञान का अन्ना बन के, सिर्फ दिखावे वास्ते। ते अज बाहर की विद्या भी दिखावे वास्ते है। बाहर की जिन्नी विद्या है ना, घर के अंदर खिन का भी सुख नहीं दे सकती। सच्ची गल है, घर के अंदर सबर नहीं दे सकती ये बाहर की विद्या जिन्नी भी है। महाराज जी इस गल नूं समझाउंदे कहंदे ये बाहर का जिन्ना भी तुसीं भेख कीता, मूर्ख अंधे पत गवाई, विण नावै किछ थाए ना पाई, रह बेबाणी। बेबाणी कहंदे उजाड़ च कोई जाके वस जाए, मणी मसाणी मसाणियां च जाके अघोरियां वांग बह जाए, अंध ना जाना फिर पछताणी। कहंदे फिर भी नहीं पता लग्या, अंत विच तू पछताउणा है। सतगुर भेटे सो सुख पाए, जे गुरु का शब्द मिल जाए ना, भाई गृहस्थ भी कमा, परिवार भी कर, भुखा ना रह, मौन रखण की लोड़ नहीं है, आनंद मान, सब कुछ कर, मुक्की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। गुरु यही समझाते हैं, जो दीसै गुर सिखड़ा, गुरु यही समझाते हैं, संत मिलै किछ सुनिए कही है। गुरु साहब कहते हैं
इस करके सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए। एक गल ही है नानक लिखा, एक गल हरि का नाम प्रभु का नाम मन वसे। नानक नदर करे सो पाए, जिससे नदर होंदा है उन्होंने ये गल समझ आती है कि भाई बाहर की पढ़ाई, बाहर का भेख, बाहर का धर्म, बाहर के तीरथ, ये सब झूठे ने। जे थोड़े दिन वर्त रख लिया, उन्होंने दिनों के बाद मन के अंदर तो फिर भुख चलती रही, पकवान बंदा छकदा रहा, फिर बाहर का वर्त रखने का की फायदा। थोड़े दिन रखिया, अगले दिन बहजा कराती खाण की, कोई चीज़ नहीं छड्डी। महाराज कहते मूर्ख अंधे पत गवाई। ये सब कुछ नानक सतगुरु जी ही कहते, जे नाम मन दे विच वस गया, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते नह केवल। नह केवल का मतलब सिर्फ प्रभु, होर कुछ नहीं। नह कामता, ਉਹਦੇ मन च कोई आस नहीं कि मैं नंगे पैर तुरिया मैनू रब ये दे दे, मैं भुखा रहा मैनू ये दे दे, मैं इत्थे तीर्थां ते गया मैं ये लेना है। महाराज कहते ये बंदगी नहीं है, ये तो सौदेबाजी है, ये तो गिणतियां मिणतियां ने। जे बंदगी करनी है नह केवल होके करो, सेवा करत हुए नह कामी, कामना तो रहत जिसको होत प्राप्त स्वामी। बाकी दे सौदेबाजियां ने सारियां। इनू क्या नानक नदर करे सो पाए। जे नानक नदर करे, गुरु साहब नदर करन, उन्हों मिलता है आस अंदेसे ते नह केवल, बिल्कुल निर्लेप होके हौमै शब्द जलाए। फिर वो हौमै दे विच जिहड़ा तपिया फिरदा सी, वो गुरु के शब्द दे विच अपने आप नूं खत्म कर दिंदा है। पौड़ी दी विचार कल ते अगले लगदे श्लोकां दी विचार कल करांगे। बस क्योंकि थोड़ी विचार इनू विचारना जरूरी सी, कल्ले पढ़े लिखे की गल नहीं सी। बाकी होर भी जिहड़ी भेख कीते जाते हैं, वर्त रखे जाते भाई, जो जिन्हां दा धर्म है ना, दास फिर हाथ जोड़ के गल च पल्ला पा के यही बेनती करता है, भाई जो जिदा है उदू मुबारक है, पर सिख वास्ते ये प्रमाणता नहीं है, सिख लई ये सौदेबाजियां नहीं है। सिख ते अब हम चली ठाकुर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। भुलां चुकां दी खिमा। समुचे तौर पर सारियां दा धन्नवाद। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।